Last time we did some of the questions, and now we will move ahead of that. So there is one question in your assignment again, the question number 7. It's given to us as 1 plus 3 plus 5 plus dash 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 3983 upon 1992. So we need to solve this thing. So हम लोग क्या करेंगे, हम लोग if we see, तो हम लोग numerator में if we see, so this is odd numbers up to 3983, हमें ये फाइंड आउट करने का. So that is equals to 3983 plus 1 upon 2. So that will give us 1992. So these will be, जो न्यूमरेटर की बात हो रही है, these are first 1992 odd numbers, and this will be written as 1992 square, because sum of first 1992 odd numbers is 1992 square upon 1992. So this square and this get cancelled, and we get final answer as 1192. So this is the answer for us. In the same way, we are having another question. Like you have already done the rest of the questions. Now we are going to learn today another different type of question. But before that, I would like कि आप मेरे लिए कुछ questions के answer दे दीजिए, so that I may proceed ahead. So these are the questions. Find the sum of all odd numbers up to 234. Number 2, 1982. Let's say it's go 1982, 1994, and find the sum of all even numbers up to and number 2, okay. Just do these things for questions for me, then we will proceed ahead. So let us understand this. Number of odd numbers हमें find out करने हैं. So we have to find how many odd numbers are there. It is
234 upon 2, that is 117, and sum is equals to 117 square, and 117 square is, all of you know that it is 11, it's 134 13689. Similarly, when we are talking about 1994, Sir, so it is 1994 upon 2, because even numbers है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 997, and sum is equals to 997 square, that will be equals to 994009. Then second, अब यहाँ पे इवन नंबर्स की बात कर रहा है, and this 211 is an odd number, तो हम पहले नंबर ऑफ इवन नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 211 minus 1 upon 2, it is equals to 105, and sum will be equals to 105 into 106, so this will be 11130, and the last one is 2017, ये भी आएगा 2017 minus 1 upon 2, so that is equals to 1008, and sum is equals to 1008 into 1009, it's 1017072. So these are the answers. I hope you would have understand कि हम लोगों ने कैसे ये सब चीजें किया. Just go through it. In case कोई problem है तो पूछे, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे and we will be doing the next type of questions. Then note it. No, the question can be asked in this way: what is the number at the unit place of, let's say, 143 raised to power 73. Suppose this is the question. It is asking us find the number at the unit place of 143 raised to power 73. So the question is having a power of 73 in this question. So one way of doing it, इसको एक तरह से हम ऐसे कर सकते हैं, 143 को 73 times multiply करें, and then we do it, right? Another way is like, इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे. अब स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक हम छोटा सा टेबल बना रहे हैं, इसको आप समझिएगा. 1 3 7 and 9, ये मैंने कुछ ऑड नंबर्स दिए, एंड फ्रॉम हेयर यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्या करें, अभी किसी भी, अगर हम इसकी पावर 4 ले लें और मल्टीपल ऑफ 4 ले लें, अब देखें 1 raised to power 4, 1 into 1 into 1 into 1 gives us 1.
3 रेज टू पावर 4 होता है 81, 7 रेज टू पावर 4 होता है 2401 एंड 9 रेज टू पावर 4 होता है 6561। इन सब में ना एक चीज कॉमन है, दे ऑल आर एंडिंग इन 1, दे ऑल आर एंडिंग इन 1। अब बात आती है कि जी व्हाट इज स्पेशल इन इट इफ दे आर एंडिंग इन 1। राइट, इसमें एक बोला जाता है कि व्हाट इज स्पेशल इन इट इफ दे आर एंडिंग इन 1। तो हमारे पास क्या है, इफ दे आर एंडिंग इन 1, तो आपको पता है 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें वो हमेशा 1 ही रहता है। सो दिस ऑलवेज एंड्स विद 1। So what we can say that any odd numbers having power multiple of 4 always ends with 1. Any odd number with power or raised to power 4n always ends in 1। अब 1 की स्पेशलिटी ये है कि जैसे हम लोग 81 इंटू 81 करेंगे, 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81, ये कुछ भी नंबर आएगा बट दिस विल ऑलवेज एंड्स विद 1। दैट इज वाई हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 है, ये पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये हमेशा 1 से एंड होगा, अदरवाइज वी नीड टू चेक। तो हमने जो अपनी इतनी बड़ी एक्सपेंशन थी उसको छोटा कर दिया। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे? हम लोगों को देखना है कि बात है पावर की, किसकी है? बात है एनी नंबर विद पावर 4n। तो पावर 4 का अगर मल्टीपल है, हमें इसको ध्यान देना है। तो हम देखेंगे 73 को 4 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, तो 4 18s are 72 and remainder is 1। We have got this. So I'll be writing this as 143 raised to power 4 into 18 plus 1। ये मैंने क्या किया, हम सबको पता है, हम सब ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। तो मैंने इसको इस शेप में चेंज कर दिया। खैर मुझे जरूरत नहीं थी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि हमने इसको क्या किया, हमने इसको डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, लेट अस सी दैट। इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, 143 4 इंटू 18 इंटू 143 रेज टू पावर 1। नाउ लुक एट द थिंग्स। हम लोगों ने पढ़ा एनी ऑड नंबर with power 4 and always ends in 1। now this is an odd number, इसकी पावर है मल्टीपल ऑफ 4। सो ये वाला पार्ट जो है ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा, बट दिस विल ऑलवेज एंड्स इन 1। हमें नहीं पता वो नंबर क्या होगा, बट इतना श्योरिटी है कि ये नंबर 1 में एंड होगा, इनटू 143। now we have got it as 143। now all we need to do is this into this,
So we have got it as 1 into 3 equals to 3. तो जब भी हम लोग यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को ही मल्टीप्लाई करके चेक करना है. सो दैट इज वाई मेरा जो पूरा फोकस रहा वो सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर्स के ऊपर ही रहा. तो जस्ट चेक दिस आउट अगेन. मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया. हमने 73 को इस 73 को ब्रेक डाउन किया एंड वी राउट इट एज 4 into 80 यानी 4 के मल्टीपल के हिसाब से चेक किया. फिर ये जो 4 का मल्टीपल था इस पार्ट को अलग कर दिया, दूसरे पार्ट को एज इट इज रहने दिया. ये जो 4 का मल्टीपल था जो पावर जहां पे वो एक नंबर आएगा जो 1 से एंड होगा. अब हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या, लेकिन इतना श्योर था कि वो नंबर 1 से एंड होगा. एंड देन हमने सिर्फ यूनिट प्लेसेस के नंबर्स को ही चेक किया एंड वी हैव गॉट आवर फाइनल आंसर एज 3. आप एक काम करेंगे, आप इसको प्रॉपरली देखेंगे, एक बार इसको समझेंगे और फिर उसके बाद नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे डाउट्स पूछेंगे. Now, for example, we are having another number. Number could be anything. For example, 47 raised to power 127. Now we need to find out the unit place of this number. Our first step is divide 127 by 4 क्योंकि ये जनरलाइज हो गया. Divide 127 by 4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 3s are 12, 4 1s are 4 and remainder is 3. तो 127 is 4 into 31 plus 3. So we will be writing it as याद आएगा आपके पास 4 into 31 plus 3 में से हम 4 into 31 ऐसे लिख देंगे एंड जो प्लस 3 वाला पार्ट है वो अलग से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 47 raised to power 3. नोट अंडरस्टैंड द थिंग वेरी केयरफुली. ये 4 का मल्टीपल है तो ये तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ लॉन्ग नंबर एंडिंग विद 1. And this is 7 cube. 7 cube is 343. And this is going to be a long number ending with 3. So हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने दोबारा से ये 7 raised to power 47 raised to power मल्टीपल ऑफ 4 है इसकी पावर. तो इसके लिए तो हम लोगों ने डायरेक्टली 1 ही लिख दिया, इसके लिए कुछ नहीं करना. बट ये जो 47 क्यूब था जो एक्स्ट्रा बच गया था, हमने सिर्फ इसमें भी 7 का क्यूब चेक किया. तो 7 क्यूब इज 343 and we were concentrating only on unit place number. Now again 1 into 3 gives us 3. So that gives me the answer 3. So my final answer is 3. Okay, what we were saying. No, it is going to be 27, I suppose. Let us see. First thing we have to do is we just have to do 123. We just have to check the power. No, this 123 is not the base. This 123 is the power I am talking about. So 123 को आप 4 से divide करेंगे. So it is 4 into 30 is 120. Remainder is 3. So this 123, this can be written as 4 into 30 plus 3. अब बेस में कुछ भी होगा
दैट इज यस, बेस में कुछ भी होगा वो हम लोगों को मैटर नहीं करता, पहले पहले मैटर करता है कि पावर को हमने किस तरह से सेपरेट किया। एंड यस, दिस इज 1 2 3 raised to power 4 into 30 into 1 2 3 raised to power 3. Now if you talk about this particular part, the first part is having the power as multiple of 4. So this is going to be a very, very, very long number, but ending with 1. Right. And 3 cube. Now we have to concentrate upon 3 cube. 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चे 3 से, हमें 3 का क्यूब चेक करना है, बिकॉज हम लोग 3 का क्यूब लेके चल रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग नंबर. अगेन 123 का क्यूब होगा, बट हम 3 का क्यूब चेक करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी लॉन्ग नंबर बट एंडिंग विथ 7. नाउ हमें यूनिट प्लेस को देखना था, so finally we will be checking it as it is 1 into 7 and my final answer is 7. So Dr. Ujjwala has given the right answer for it. So this is how we have to go. Again, I repeat it once again. First of all, we have to check about this power. Right? We have to check about this power 123. And then this 123 will be breakdown into the multiple of 4. So we have got 4 into 30 plus 3. And then we will separate it like we have done it here. 123 raised to power 4 into 30 and 123 raised to power 3. And this particular part, the first part is having the multiple of 4. We have already studied it. Any odd number having the power multiple of 4 will always end with 1. So we have got 1 here. And then rest of the part was having 3 as the power. So everything depends upon the power itself. So it is what it is 3 cube, and 3 cube is giving us 7, and by final answer we are getting as 7. Right. Now in the next example we will be cut short this particular thing also. हम इसको और छोटा करेंगे. आप देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे इसको और मिनिमम टाइम में हम इसको कर सकते हैं. तो यू जस्ट सी. Now, for example, I am having a number 137 raised to power 46. Now, look at the things very, very carefully. First of all, our method is we just divide 46 by 4. Power को हम 4 से divide करते हैं. 11 4s are 44. Remainder is 2. और that is why this particular power could be breakdown. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 137 raised to power 4 into 11 plus 2. And then इसको हम further इस तरह से लिख सकते हैं 137 raised to power 4 into 11. Very good, Akshay. Into 137 raised to power 2. And now, nice Nishu, nice Dr. Ujjwala. हम इसको और छोटा करेंगे. Let us see. पहले तो हम इसको एक बार कर लेते हैं यहां तक. तो यहाँ पे if we see here, so this will give us, yes, you have done it on your notebook. This is going to be 1, and we will be looking at 7 square, and 7 square is 49, so we'll be having 9, and finally we will be doing the multiplication of 1 into 9, that is 9. So my final answer is 9. That is perfect, right? But now let us look at the things. अब एक थोड़ा सा ना छोटा सा हम लोग रिवर्स करते हैं. ठीक है, हम बात को उल्टा समझते हैं. देखें,
यहाँ पे अब बात समझिएगा, यहाँ पे 9 क्यों आया? बिकॉज यहाँ 9 था। आपने देखा, अगर यहाँ 7 होता तो मेरा आंसर 7 आता, इस जगह पे 3 होता तो मेरा आंसर 3 आता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। 1 इंटू 7 होता तो 7 आता, 3 होता तो 1 इंटू 3 3 आता। परफेक्ट, ये बात समझ आई। नाउ सेकेंड थिंग इज, ये 9 क्यों आया इस पर्टिकुलर जगह पे? बिकॉज यहाँ पावर वॉज 2। अगर 7 रेज टू पावर 1 होता तो यहाँ 7 आता, 7 रेज टू पावर 2 था तो 9 आया, और अगर ये 7 रेज टू पावर 3 होता तो 343 यानी 3 आता, और 7 रेज टू पावर 4 होता तो ऑड नंबर रेज टू पावर 4 होता तो ये भी 1 बन जाता, और ये बात ऐसे आगे चलती, राइट। अब ये 2 कहां से आया? ये 2 आया इस रिमाइंडर से, ये जो एक्स्ट्रा बचा था, ये जो हमने यहाँ रिमाइंडर फाइंड आउट किया, राइट। तो अगर हम लोग इस बात को सिर्फ इतना बात करके समझ लें, लेट अस सी। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 130 137 रेज टू पावर 46, राइट। सो वी जस्ट नीड टू सी कि जब हम इस 46 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या रहा। हमारा सारी बात रिमाइंडर के ऊपर आ गई। 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप सबको बताया 4 11 44, रिमाइंडर इज 2। आप बाकी सब पार्ट को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपने। आपने देखना है 137 रेज टू पावर 2 क्या होता है, 137 रेज टू पावर 2, राइट। बाकी वाले पार्ट को छोड़ ही देना है। यू जस्ट हैव टू चेक द रिमाइंडर ऑफ द पावर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है रिमाइंडर ऑफ द पावर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो आपको उस रिमाइंडर के बारे में बात करनी है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, राइट। एंड देन you just have to take this 7 का square. This 7 का square will be giving you a long number ending with 9. Try to understand this. For example, I am having a number 149 raised to power 38, right? What we need to do is we just need to check this 38. तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, विल बी गेटिंग 149 रेज टू पावर 2, बिकॉज 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2, एंड देन दिस 9 स्क्वायर इज द आंसर दैट विल गिव यू 181. तो आपको उसके बाद यूनिट प्लेस को ही देख के चलना है. So in this case my answer is 1. Nice everyone, you are doing great. I hope मेथड आपको क्लियर हो गया थोड़ा सा. अब आगे बढ़ने से पहले जस्ट गिव मी द आंसर फॉर दिस 67 रेज टू पावर. नाउ मैं थोड़ा सा नंबर बड़ा कर रहा हूं, 147. Come on, let's see who will give me the answer first. So what we have done here, we first of all we have to look at this 147, right? So just divide 147 by 4. 4 3s are 12 and 4 6 are 24. So remainder is 3. Yes. Right. हाँ सर. So हम लोगों को हमेशा देखना ही यही है कि हमारे पास रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं, and this thing will be short down to only 67 raised to power 3. So this will short down to this, and then we just have to, because हम लोग यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, so this has to be 7 cube we have to check, and 7 cube is 343, right? So 7 cube is 343. We just need to check कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा जब हम 7 का क्यूब लेंगे. So my answer will be 3. So that is why we can directly now. अगर हम लोग इसको ध्यान से समझ लें, सिर्फ हम लोगों को ये चीज समझनी है. Now
अब 147 को भी आप में से 47 आपको ना 147 को 4 से डिवाइड करना होता है. नो, आई एम अगेन कट शॉर्टिंग इट. तो कटिंग इट शॉर्ट, हमारे पास क्या है, 147 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं हर बार, बिकॉज जो भी पावर होती है हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, एंड 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, राइट. और जो लास्ट 2 डिजिट्स जो भी आपको वो देता है, रिमाइंडर देता, वही पूरा रिमाइंडर होता है. तो आपको अगेन इसको भी छोटा कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू सी 47. अब आप इतना तो समझ सकते हैं कि 47, 147 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 47 को चेक करें. 47 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 3 एज द रिमाइंडर. 4 11s of 44, रिमाइंडर इज 3. सो आपका ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था 67 रेज टू पावर 147, ये क्या बन गया, एक तरह से बन गया 7 रेज टू पावर 3, राइट. ये आपका सिर्फ ये बन गया 167 रेज टू पावर 47, बिकॉज हमें यूनिट प्लेस का नंबर चेक करना है. ओके, यूनिट प्लेस पे 7 है तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया 7 पे, एंड 147 को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया 3 पे. तो मेरा ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना वो इतना सा बन गया. अब 7 क्यूब इज 343, सो योर यूनिट प्लेस इज 3. तो चीजें और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई. देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया, हमने वो बड़े नंबर से स्टार्ट किया और हम लोग कहां तक पहुंच गए. एक एग्जांपल और करता हूं तो आपको मेरी ये वाली बात ना प्रॉपरली क्लियर समझ आ जाएगी. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, अभी मैं ऑड नंबर्स को कंसंट्रेट कर रहा हूं, इवन नंबर्स को हम नेक्स्ट सेशन में कंसंट्रेट करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 1483 रेज टू पावर 3781. नो, वेरी बिग बेस, वेरी बिग नंबर. लेकिन जब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं ना तो हमें इतनी बात समझ आ जाएगी कि हम लोगों को सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है, तो 3. और ये जो 81 है, 43781 में से हम लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट 2 डिजिट्स को जब 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 81 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो विल बी गेटिंग द रिमाइंडर एज 1. सो माय फाइनल आंसर इज 3. हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है कितना बड़ा काम करने के लिए. सो माय फाइनल आंसर विल बी 3. So it is 3 raised to power 1 and my answer is 3. So I hope this thing has made sense to all of you. Yes, sir. Right? Yes, sir. Let us get connected in the next session. And So in the can we give meantime, one? pardon, please. Sir, और एक नंबर दोगे, मतलब Sure देंगे जी. एक आप तैयार है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है. Let us do one more. अब आप ये करिए जरा. Okay, do it for me. We took only 7 of the unit place here. Yes, sir. And we took only 53 from here. We divided it by 4. We left with remainder as 1. And my final answer is 7 raised to power 1, that is 7. Right? So, ठीक है जी. That's all for the day. Thank कल you, sir. मिलते हैं at the same time, at the same place. God bless you all. Just take care of yourself. And जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद मुझे ना लो आता है थोड़ा, जोश से नहीं आता. जय हिंद तो जोश जय से. हिंद, sir. Yes. Jai Hind, sir. Okay, then see you.